Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.1 पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। इस क्रांति की नीतियां और क्या प्रभाव पड़ा, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। रिवॉल्यूशनरी रशिया not only changed the policies of Tsarist Russia, it also did many things that were different and more than just than what existed in capitalist countries of Europe. Its policies laid the foundation of socialism in Russia. क्रांतिकारी रूस ने न सिर्फ जार की रूस संबंधी नीतियों को बल दिया, बल्कि इसने और भी कई कार्य किए जो यूरोप के पूंजीवादी राष्ट्रों में मौजूद चीजों से अलग और अधिक थे। इसकी नीतियों ने रूस में साम्यवाद की नींव डाली। Knowing fully well that people were tired of war and wanted peace, and that war was not in the interest of people in any country, one of its first acts was to withdraw from the war. इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि लोग युद्ध से थक चुके थे और वे शांति चाहते थे तथा यह युद्ध किसी भी राष्ट्र के लोगों के हित में नहीं था, उसका सबसे पहला कार्य इस युद्ध से हटना था। The Bolshevik abolished private property in the means of production, that is, land, factories, and banks, all of which were nationalized and now owned by the state and not by the private owners. This means that they could not be used to exploit the labor of others and make private profit anymore. Workers' organizations had a greater say in the decision-making process. बोल्शेविक ने उत्पादन साधनों अर्थात भूमि, फैक्ट्रियों और बैंकों में निजी संपत्ति समाप्त कर दी। इन सब को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया तथा अब ये राज्य के स्वामित्व में थी, न कि निजी स्वामित्व में। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दूसरों की मेहनत का शोषण करने में के आदी नहीं हो सकते तथा निजी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में श्रमिक संगठनों का बोलबाला होता था। Through the Lands Decree of November 1917, landlordism was abolished and land was given over to peasants for hereditary use. Peasants could not sell or mortgage the land or use it to exploit the labor of others, but they were masters of their land and enjoyed the full fruits of their labor and produce from the land. They did not have to depend on former landlords in any way, whose powers over rural economy and society were demolished. अब देखिए, नवंबर 1917 की भूमि डिक्री के माध्यम से जमींदारी समाप्त कर दी गई थी और पैतृक उपयोग के लिए भूमि किसानों को सौंप दी गई थी। किसान इस भूमि को बेच नहीं सकते थे अथवा गिरवी नहीं रख सकते थे अथवा दूसरों की मेहनत का शोषण करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, परंतु अपनी भूमि के स्वामी थे वे और इस भूमि से अपनी मजदूरी और उत्पादन का पूरा लाभ उठा सकते थे। वे किसी भी तरह से पूर्ववर्ती जमींदारों पर निर्भर नहीं थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर से जमींदारों की शक्तियां समाप्त कर दी गई थीं। These measures meant that the Russian people became equal beneficiaries of the resources and economy of the country. It also became possible now to plan centrally for the benefit of all parts and all sections of the people. This system of centralized planning was seen as important and was adopted by many countries, including India. अब देखिए, इन उपायों का अर्थ था कि रूस के लोग
देश के संसाधनों और अर्थव्यवस्था के से समान रूप से लाभान्वित थे। सभी भागों और वर्गों के लोगों के लाभ के लिए केंद्रीय रूप से योजना बनाने भी अब संभव हो गया था। केंद्रीयकृत योजना बनाने की इस प्रणाली को महत्वपूर्ण समझा गया तथा भारत सहित कई राष्ट्रों द्वारा इसे अपनाया गया। The new constitution guaranteed free medical care, free and equal education for all, an unemployment allowance, equal access to culture and cultural advancement. नए संविधान में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, सभी को निःशुल्क तथा समान शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, संस्कृति और सांस्कृतिक प्रगति के लिए समान पहुंच की गारंटी दी गई थी। Not all of this was immediately available, but by making these a right for all, the new regime showed the direction of its policy and commitment. ये सब कुछ तत्काल उपलब्ध नहीं था, परंतु सबके लिए इसका अधिकार बनाकर नए शासन ने अपनी नीति और वचनबद्धता के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाए। The differential between people holding middle class type of jobs and those working on land or in factories were far less than in other countries, both in terms of salaries and entitlement to facilities provided by the state. Standard of life was not dependent on whether one could personally pay, because many things did not have to be paid for. अब देखिए, वेतन तथा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की पात्रता दोनों के अनुसार अन्य देशों की तुलना में मध्य वर्ग के काम करने वाले लोगों और खेतों अथवा फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। जीवन स्तर इस बात पर निर्भर नहीं था कि किस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कितना भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए तो कुछ पैसा देना ही नहीं पड़ता था। Women were not just considered equal. A lot of measures were taken to make their equal participation in social and political life possible. Maternity leave, public canteens, free crutches at workplaces, etc. महिलाओं को समान नहीं समझा जाता था, इसलिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनकी समान भागीदारी संभव बनाने के लिए मातृत्व छुट्टी, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं, सरकारी कैंटीनों, कार्यस्थलों आदि में निःशुल्क पालना घर खोलने संबंधी उपाय किए गए। They considered their state the dictatorship of the working class, because the working ordinary people and their welfare was now the basis of polity and policies. वे अपनी स्थिति को श्रमिक वर्ग की तानाशाही समझते थे, क्योंकि काम करने वाले साधारण लोग और उनका कल्याण राजनीतिक तथा नीतियों पर आधारित था। The new regime gave moral and some physical support to independence struggle against colonial rule and recognized the right of all nationalists to decide their own future. For this reason, the Russian Revolution was lauded in all Asian countries and inspired people all over the world. China and India were also greatly influenced by the Russian Revolution. There was a spread of socialist ideas. नई प्रशासन प्रणाली ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्षों को नैतिक तथा भौतिक सहायता प्रदान की तथा सभी राष्ट्रों को अपने भविष्य का निर्धारण करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। इस कारण से सभी एशियाई देशों में रूसी क्रांति की प्रशंसा की गई तथा संपूर्ण विश्व में लोग इससे प्रेरित हुए।
चीन और भारत रूसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित हुए। इससे साम्यवादी विचारधाराओं, सोशलिस्ट आइडियाज का प्रचार हुआ था। Nationalist leaders in India realized the significance of the move, intervention of peasants and workers in political struggles. People in India sensed that a Kisan Mazdoor Raj has been established in Russia. The 1920s thus saw the formation of workers and peasant parties, the All India Trade Union Congress, and increasing efforts in India to organize workers and peasants. आगे देखिए, आगे बोल रहा है, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने राजनीतिक संघर्षों में किसानों और श्रमिकों के हस्तक्षेप के महत्व को जाना। भारत के लोगों ने अनुभव किया कि रूस में किसान मजदूर राज की स्थापना की गई है। अतः 1920 में श्रमिकों और किसान पार्टियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ तथा भारत में श्रमिकों और किसानों को संगठित करने के प्रयासों में वृद्धि हुई। The imperialist countries were, however, opposed to the revolution and they sent their troops to defeat the new Bolshevik regime. They were not successful and the new revolutionary regime survived, due mainly to the support of the people and the dedication of the revolutionaries. What happened in Russia and Europe following the Russian Revolution and the end of World War I is another story which you will read about in the next lesson. अब देखिए, तथापि साम्राज्यवादी राष्ट्रों, imperialist countries, ने इस क्रांति का विरोध किया और उन्होंने नई बोल्शेविक शासन प्रणाली को पराजित करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी। वे सफल नहीं हुए तथा नई क्रांतिकारी शासन प्रणाली मुख्य रूप से लोगों की सहायता और क्रांतिकारियों के आत्म बलिदानों के कारण बची रही। रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस और यूरोप में क्या हुआ, यह एक अलग कहानी है जिसके बारे में आप अगले पाठ में पढ़ेंगे।